But in our previous session, we saw the basic idea or the concept of time series, कि by how the time series and all help us to estimate the variable y. It helps us to estimate the variable y when we keep time as a constant factor. And then in the first lecture we also saw कि भाई हमको अगर y का वैल्यू एस्टिमेट करना है तो हमें ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी. Which line we are supposed to make? We have to make a trend line जिसका फॉर्मूला था y cap is equal to a plus bt. The formula for the trend line was y cap is equal to a plus bt. But the last lecture we just understood, we just went through with the theory part, wherein we saw कि भाई ये ट्रेंड लाइन को कौन कौन से फैक्टर्स एंड ऑल अफेक्ट करते हैं, किन किन को हमको ध्यान में रखना है. तो देयर वर 4 फैक्टर्स and we had discussed those 4 factors also in detail. कि भाई कौन से 4 फैक्टर है जो ट्रेंड लाइन को अफेक्ट करेंगे, हमने वो भी डिटेल में डिस्कशन कर लिया था. When I concluded the first lecture, I told you कि ट्रेंड लाइन को ढूंढने के लिए there are basically 2 methods. The first method was a graphical method जो आज हमें शुरू करनी है, and the second method is a method of least square. So that is a formula based method that we would be starting up in the next lecture. Today we would find the trend line. We would find the linear trend line by graphical method. So beta दौड़ता जाओ, नोटबुक लई आओ, पेन पेंसिल बद्दू लाओ, चलो फटाफट जाओ, केम के ए बधी वस्तुओं तमने जोई से. We would be drawing the graph today. Come on, फटाफट फटाफट, get all the necessary accessories. Come on, get it. Get all the necessary accessories and then we start off with the sum. Okay, the trend line by graphical method. The trend line by graphical method. Let's start doing the sum. The first sum. तुम अपने एक्सरसाइज 4.1 पर चले जाओ, जिनके पास नहीं है, I have shared my screen with you. This is the sum which we are doing it right now. The information about the capacity in lakh tons to load the ship at port each year is given below. Find the linear trend using graphical method. अब देखो, हमें जो ये ईयर दिया है, we are given with the year which I consider it to be time, and capacity दिया है वो है मेरा वेरिएबल y, वो है अपना वेरिएबल y. ओके, अब तुम अगर ध्यान से, अगर तुमने मेरा पहला लेक्चर अगर सुना हो तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमको हर एक सम में ऐसा टाइम तो दिया होगा. The time can be given either in the form of year, it can be given in the form of month, it can be given in the form of days. तो जब हम सेकेंड मेथड पर जाएंगे, जब हम जाएंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पर, तो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला ऑफ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर. तो उस वक्त हमको अगर टाइम अलग अलग तरीकों से दिया होगा तो वो हम फॉर्मूला में फिट नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन में दिया हो, अगर वो ईयर्स में है, मंथ्स में है, डेज में है, कैसे भी अगर उसको दिया होगा, उसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे. 1 2 3 4 5 6 ऐसा हमेशा हम कर देंगे हर एक सिचुएशन में. We would convert the time into 1 2 3 4 5 in whatever information the time would be given to us. We would convert that first in numerical order 1 2 3 4 5. That will simplify our sum, that will simplify our calculation, that will also help us to present the data graphically also in a much better way.
तो rewrite the sum in your notebook, rewrite the sum along with me, come on. इस तरह से सम को रीराइट करो कि हमें जो ईयर दिए हैं, हमें जो ईयर दिया है 2008, 2009, 2010, 11। एंड बेटा जब तुमने लास्ट लेक्चर थियरी का देखा था तो उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि देखो टाइम हमें इक्वल इंटरवल का दिया होगा। देखो यहां पर हर एक के बीच में 1 ईयर का गैप है, तो वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। द टाइम गैप विल बी एट इक्वल इंटरवल 2013, 2014 and 2015. This year will get converted into time which will be presented by small t, which will be presented by small t, and ये जो कैपेसिटी है, जो लैक टन की कैपेसिटी है, वो मेरा वेरिएबल है जिसको हम डिनोट करेंगे yt से, yt। सो अब ये जो 2008 है उसको टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। इस तरह से उन्हें आपको टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू टाइम फ्रेम 1 2 3 4 5 6 7 8। देन ये जो कैपेसिटी है अपनी वो हम लिखना शुरू करते हैं। देखो जरा 90, then 97, 108, 111, 127, 148, 169 and 200. Okay. And now when we are presenting the data under graphical method, when we will be finding out the trend line under graphical method, I will represent on graph this time t 1 2 3 4 5 6 7 8 and this capacity of yt। वो दो चीज हम अभी ग्राफ पे उनको हमको डिपिक्ट करना है। दो चीजों को, ईयर को हमने कन्वर्ट कर दिया है टाइम में, तो वो टाइम और ये कैपेसिटी, ये दो चीजों को अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में बताएंगे। सो अपने नोटबुक में हेडिंग मारो, नोटबुक में हेडिंग मारो ट्रेंड लाइन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ट्रेंड लाइन यूजिंग ग्राफिकल मेथड बराबर है। હવે તમે x एक्सिस y एक्सिस बेटा तुम पेंसिल स्केल से करो, अपने पास तो नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि जितनी सीधी लाइन में ड्रॉ कर सकूं उतना हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश करने की सीधी लाइन बनाने की। नाउ दिस इज माय y एक्सिस, ओके, देन हियर I'll draw x axis। Now always remember x axis पर हमको टाइम ही लेने का, हमेशा x axis पर हम टाइम को कंसिडर करेंगे एंड y एक्सिस जो है उसमें हम डिपिक्ट करेंगे कैपेसिटी को, उसमें हम डिपिक्ट करेंगे कैपेसिटी को which is given in lakh tons। तो x एक्सिस y एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर बेटा तुम्हें मुझे हेल्प करनी है स्केल को लेने में। स्केल हम x एक्सिस पर क्या स्केल ले, y एक्सिस पर क्या स्केल ले, तुम मेरी हेल्प करना, ठीक है। अच्छा मैं क्या बोलता हूं,
एक्स एक्सिस वाला मैं कर दूंगा, चलो तुमसे क्या पूछूं यार, मैं इतनी टफ चीजें मैं खुद कर लेता हूं। तुम वाई वाला मेरे को बताना जो इजी है, बराबर। सर छुट्टी पेन पड़ी जाए છે હાથમાંથી, તમે ઈઝી વાત કરો ત્યારે छुट्टी पेन पड़ी जाए છે। हेलो बेटा, कितने लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके तैयार बैठे हैं? गिव मी थम्स अप। आजू बाजू वालों से पेंसिल स्केल सब मांग लिया हमने, बहुत बढ़िया। पेंसिल स्केल लेके बेटा ड्रॉ करा है, कसम से बेटा पेंसिल स्केल लेके किए हैं, बढ़िया। चलो शुरू करते हैं। एक्स एक्सिस पर स्केल लेने की ज्यादा मगजमारी नहीं है, वो इजी है क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमें जाना है, तो यहां पर मैं स्केल लेना शुरू कर दे रहा हूं। दिस इज 1, then 2, then 3, 4, 5, 6, 7, and the last one is 8. Okay. अगर हम देखें y एक्सिस का, अगर हम देखें इंफॉर्मेशन, मिनिमम 90 है, मैक्सिमम है 200। मिनिमम इज 90, मैक्सिमम इज 200। तो यू गिव मी थम्स अप, व्हाट स्केल शैल आई टेक? स्केल y एक्सिस का, y एक्सिस का स्केल क्या ले हम? सर मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। द्वारकेश, द्वारकेश अनम्यूट बेटा। सर 20 का स्केल लेने के लिए बोल रहे हैं द्वारकेश। अच्छा 20 का स्केल ले सकते हैं। फिर फरहीन, फरहीन, फरहीन सर 50 का भी ले सकते हैं। 50 का स्केल अगर लेंगे बेटा तो 50, 100, 150 ने 200, 4 डॉट માં તો આખું ગ્રાફ પતી જશે। આમ પેલું નાના નાના ટપકા કરીને પેલી મહેંદી કરી હોય એવું ગ્રાફ બનશે यार, મજા નહીં આવે। ડોન્ટ ટેક 50, નો નો નો, डोंट टेक 50। तनिष्क, तनिष्क 25 का स्केल लेने के लिए बोल रहे हैं। ध्रुविक, 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 ध्रुविक અનમ્યુટ બેટા। ध्रुविक હા સર કિંગ કરીને આપણે 10 ની સ્કેલ લઈ દો ના ચાલે? एब्सोल्युटली राइट। पेलू क्लिंग का साइन देके, कंटिन्यूएशन वाला साइन लेके 10 का स्केल लो ना, ताकि तुम्हारा ग्राफ कितना अच्छा दिखेगा। सी तुम लोगों ने अपने दिमाग में कैसा सेट करके रखा है कि स्केल मैं 0 से फिर मैं स्टार्ट करूंगा ना 200 तक जाना है, ऐसा मत सोचो। वो क्लिंग करके कंटिन्यूएशन का साइन दो ने 10 का स्केल लो, तो तुम्हारा ग्राफ बहुत अच्छा रिप्रेजेंट होगा। सर आ क्लिंग અને કન્ટિન્યુએશન ની તમે શું વાતો કરો છો? અહીંયા ધ્યાન બેટા, અહીંયા ધ્યાન, તમને સમજાવું। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से अंडरस्टैंड। यहां पर कैसा है, इधर एक ऐसा Z वाला सिंबल दे देने का, આવું અહીંયા Z वाળું सिंबल આપી દેવાનું, which indicates that it's a continuation, कि हम जो अभी स्केल ले रहे हैं तो नीचे से वो कंटिन्यूएशन में, जिसको हम क्लिंग कहते हैं। अब वो 90 से शुरू करो क्योंकि मिनिमम 90 है ना, फिर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 70, 180, 190, and the last one is 200। अच्छा बेटा, एनी डाउट विद दिस कंटिन्यूएशन वाला साइन?
ये बचपन में ग्राफ में कहीं सीखे थे कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वी हैव लर्न दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड बेटा, कितनी नई नई चीजें मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। सोचो सोचो। तो ये कंटिन्यूएशन का साइन आपने अगर कर दिया है तो लाइफ आपकी बहुत इजी है बेटा, कंटिन्यूएशन का साइन। अब क्या से तुम जिसमें माहिर हो प्लॉटिंग में, सर लोगों ने आपने तो भरी भरी ने प्लॉटिंग करी काढ़ी चाहिए। हेलो चलो बेटा पॉइंट्स प्लॉट कर दो, नाउ यू डोंट नीड मी। एंड देन हाउ डू यू नीड टू जॉइन दोस पॉइंट्स, आई टेल यू। 1 के सामने 90 है, 1 के सामने 90 है, सो 90 करके ऐसा सर्कल कर देना, 90 करके ऐसा सर्कल। फिर सेकंड के सामने क्या है 97, तो सेकंड के सामने 100 से थोड़ा नीचे 97। फिर थर्ड के सामने है 108। सर अभी कोविड में इसको बहुत देखा मैंने, बड़ी एम्बुलेंस देखी मैंने 108 वाली। सो 108। देन फोर्थ वाला 111, जो अपना फोर्थ है दैट इज 111, मतलब 110 के जस्ट ऊपर फोर्थ 111। देन 5 नो 127, 5 का 127 सर्कल। देन 148, 6 का 148, तो सिक्स्थ वाले में 148, 150 के जस्ट नीचे 148, then 169, the seventh one is 169, 179 तो 180 के जस्ट नीचे, अने 8 का कितना है देखो 200, द फाइनल टच इज 200। सो बेटा 200 पे ऐसा हमको सर्कल कर देना है। नाउ बेटा ग्राफ के तुम राइट साइड पर स्केल लिख लो। चलो एक्स एक्सिस पर मैंने टाइम लिया है विच इज इन ईयर, एंड वाई एक्सिस पर मैंने कैपेसिटी ली हुई है, एंड 1 सेंटीमीटर इज 10 tons, 1 सेंटीमीटर इज 10 tons, बराबर है। But I am waiting for you. How many of you have plotted the point? And the way I have plotted, I have put a dot, then I have done a circle. You need to do that way. Same. I don't want any change. I don't want any change. बेटा जिनका कैमरा ऑन है मुझे जरा बताओ तो, तुम्हारा ग्राफ बनाओ, बताओ। जिनके कैमरा ऑफ है उनको तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं। तुम लोग यार अंधेरे में रहो, तुम्हारे मार्क्स भी अंधेरे में आएंगे, तुमको ऐसा ही होगा। जो वीडियो ऑन करके उसी को बेटा पढ़ाने का है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्राफ पेपर कुछ तो ग्राफ पेपर पर कर रहे हैं बेटा। आई एम लविंग यू जो लोग ग्राफ पेपर पर कर रहे हैं। जोरदार जोरदार, मतलब तुम्हारे ये सारे डॉट्स अच्छी तरह से अब तुम कनेक्ट करके लाइन कर लो। join the dots and draw a line, draw a series. Join all the dots, that is अब इसको भी स्केल में बेटा ऐसा लिखो, ये जो डॉट करके हमने जो सर्कल किया है उसे हम कहते हैं ओरिजिनल सीरीज, उसे हम कहते हैं ओरिजिनल सीरीज, बराबर है।
बेटा अब तुम्हारे साथ मैं सबसे बड़ा धोखा करने वाला हूं मैं। आई एम गोना नाउ डू द बिगेस्ट द थिंग, बिगेस्ट धोखा। यहां जरा ध्यान, यहां जरा ध्यान। हमको ऐसा बोला है ग्राफिकल मेथड से हमें ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, ट्रेंड लाइन। अब तुम ये सारे पॉइंट्स को तुम देख के तुम्हें क्या लग रहा है, ट्रेंड कौन सी साइड है, ऊपर की साइड है कि नीचे की साइड है? वेयर इज द ट्रेंड गोइंग? शो मी विद द एक्शन। ट्रेंड कई बाजू છે બેટા, ટ્રેન્ડ કઈ બાજુ? આમ એરોપ્લેન કે પછી સ્કૂબા ડાઇવિંગ? બેટા વેટ ઇઝ દ ટ્રેન્ડ ગોઈંગ? वाओ वाओ बेटा, मुझे पता नहीं था इतने सारे पंखे चलने लगेंगे। ऐसा ऐसा करके पंखे चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं लोग। बहुत बढ़िया, क्या से ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। And now we would come across with the major limitation of this graphical method. हमने ये ग्राफ को देख के ये समझा कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब मेरे को ये ऊपर जाते ट्रेंड को ध्यान में रख के मेरे को ट्रेंड लाइन बनाने की। अब इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, तुम कुछ नहीं करोगे, खाली अहिया ध्यान आपो। ये ऊपर जाने वाले ट्रेंड को, ऊपर जाने वाले पॉइंट्स को देखकर हमको लग रहा है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है, तो मैं एक ऐसी लाइन बना दे रहा हूं। चेक करो, देखो, आई एम ड्रॉइंग वन लाइन। ऐसे ऊपर की तरफ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है विच इंडिकेट्स के इट्स अ ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी हमने डिसाइड किया। लेकिन तुम मेरे ही ये ग्राफ को देख के अपनी बुक में ये ट्रेंड लाइन बनाने का ट्राई करो ट्राई। जैसे मैंने ट्रेंड बनाया, ट्रेंड लाइन बनाई, तुम बना के दिखाओ मुझे ट्रेंड लाइन। અને સ્કેલમાં પણ આવું લખી દેવાનું કે આ જે કાળી લાઈન ઉપર તરફ જાય છે, that is trend line. बराबर છે बेटा? तुमने ऐसी ऊपर वाली लाइन बना दी बेटा? कुछ तो बोलो यार प्लीज, जिनके वीडियो ऑन है कुछ तो अपना नोटबुक बताओ यार प्लीज। बेटा ट्रेंड ऊपर की तरफ गया, ट्रेंड ऊपर की तरफ गया। अब मैं देखो तुम्हारे साथ कैसा धोखा कर रहा हूं, देखो कैसा धोखा कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ। ये मैंने ट्रेंड लाइन कट कर दी, मैंने कट कर दी ट्रेंड लाइन। અને પછી જો मैं एक आम बनाई लाइन, जो अरे क्यों नहीं बन रही है? अरे यार क्या हो गया? जस्ट सेकेंड, ये मशीन काम करना बंद हो गया है, रुक जाओ, वेट। But just a second, the PC and the things got hanged. हाँ, अब देखो मैंने प्रीवियस वाला जो बनाया था वो है ना तुम्हारे पास, तुमने वो देख के बना लिया ना। अब मैं तुम्हारे साथ धोखा करूंगा। देखो मैं ऐसी एक लाइन बनाऊंगा, पहले नीचे से बनाई थी, अब मैंने ऊपर से बनाई, तो भी देखो ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है। कैन यू से द गोइंग अप ट्रेंड ना? तो माई ऑल्सो ग्राफ, the graph which I drew previously and the graph which I am drawing right now, can I say that also shows an upward trend? Yes or no? That is also showing an upward trend. अब ऐसा ना करके यहां जरा ध्यान, मैं अगर ऐसी लाइन बनाऊं तो ऐसी, इधर से ऐसी लाइन बनाओ तो भी क्या ये अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है? तो बेटा हु कैन टेल मी द मोरल ऑफ द स्टोरी? समझणું પડે છે સર, તમે ઉપરની બાજુ લીટાઓ પાડો છો, બસ બીજું કઈ ખબર નહીં પડી રહી। તમે હારાવ લીટાઓ જ મારો છો, તમે સમજાવ તમે હું કહેવા માંગો છો? યસ ધ્રુવિક, व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? સર આમાં લિમિટેશન છે કે એક સરખી ટ્રેન્ડ લાઈન નહીં બને બદલાની। यस, दिस इज द बिगेस्ट लिमिटेशन, कि मेरी ट्रेंड लाइन
तुम्हारी ट्रेंड लाइन ग्राफ पे अलग अलग बन सकती है, सबकी एक जैसी ट्रेंड लाइन बनेगी ऐसा नहीं है। एंड दैट इज द लिमिटेशन कि ये ग्राफिकल मेथड में अगर तुम्हारा ट्रेंड लाइन अलग है, मेरा ट्रेंड लाइन अलग है, तो मैं y का वैल्यू एस्टिमेट बराबर तरीके से नहीं कर पाऊंगा। सो ये ग्राफिकल मेथड का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हम सबकी ट्रेंड लाइन अलग अलग बन सकती है ना। तुम्हारा भी ग्राफ बराबर है, मेरा भी ग्राफ बराबर है यार, मैंने भी कोई गलती नहीं करी है। आई एम ट्राइंग टू शो द ट्रेंड विच इज गोइंग अपवर्ड एंड लुकिंग एट द ट्रेंड आई ड्रू द लाइन, तो आई गॉट ट्रेंड लाइन। Sir, don't speak so much English, I don't understand. But are you getting what I'm trying to say? We drew the graph, we plotted all the points, we joined all the points, and then we tried to analyze where is the trend. So the trend which I found, it is going upside, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो ट्रेंड देख के मैंने ऊपर एक लाइन मार दी। मैंने कोशिश करी कि भाई मेरी ट्रेंड लाइन ये पॉइंट्स के बीच से गुजरती हुए जाए, तो तुम्हारी कहीं और से गुजर सकती है, मेरी कोई और से गुजर सकती है, लेकिन हम ट्रेंड तो बता ही रहे ना कि ऊपर की ओर जा रहा है। तो तुम भी सही हो, मैं भी सही हूं, और ये इस ग्राफिकल मेथड का सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तुम समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? समझ रहे हो? श्योर? कैन आई से वन मोर ग्राफ वी डू टुगेदर અને પછી the remaining sum on graph, will you able to do it? बेटा प्लॉटिंग करवानी चाहिए, यू आर एक्सपर्ट प्लॉटिंग। चलो, आई एम लविंग यू बेटा। सेकंड सम वी डू इट टुगेदर। लेट्स स्टार्ट सेकंड सम। लेट्स रीड। The number of tourists visiting the certain tourist place is as follows. Find the trend using suitable graph. Then again मेरे को year दिया है and the number of tourists. Now they are my variable. The number of tourists are variable, which is YT. Okay. Now who would tell me? बेटा who would tell me कि ये जो मुझे year दिए हैं, year, उनका क्या करूं? जो हमें ईयर दिए हैं उनका क्या करें? क्या करें? ईयर ईयर ईयर। जिन्होंने बेटा वीडियो ऑफ करके रखा है उन्होंने तो ना थम्स अप देना भी बंद कर दिया है। यार कैसे हो गए हो यार तुम लोग? मतलब पढ़ाई लिखाई नो मजा आई। हाँ कृतार्थ, कृतार्थ अनम्यूट कृतार्थ। यस सर। यस कृतार्थ, व्हाट विल आई डू विद दिस ईयर्स? आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर दोगे। टाइम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे अगर 2010 है तो हम उसको 1 लेबल करेंगे, देन ऑनवर्ड्स। बेटा रीराइट द थिंग, रीराइट द थिंग। The year which is mentioned to us, that is 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16. The number of tourists जो हैं, number of tourists, that is YT, 5, 7, 10, 30, 41 and 50. Whereas the year which is given to us, उसे हम convert कर देंगे time में, which is t. So 2010 will be converted as 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा कुछ लोचा मारा है क्या? 5, 7, 10, 14 रह गया सर। हाँ 14 रह गया। मैं लिख दे रहा हूँ। जनता बस राह देखती रहती है कि सर भूल कब करे, थम्स अप दे दे के मेथी मार दे उनकी हम। 5, 7, 10, 14, 30, 41 and 50. Whereas time, that will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the last one will be 7. Okay, but give the heading now.
Give the heading trend line. Trend line by using graphical method. Trend line by using graphical method. So वापस can I say ये मेरा बन जाएगा y axis. This would be my y axis. This would be my x axis. And on x axis every time I'll be taking time. Y axis में हमने लेने हैं number of tourists which they have given in number of tourists which they have given it in thousands. Number of tourists which they have given it in thousands. Okay. So 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हम लिख लेते हैं. चलो 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा तुम्हें क्या लग रहा है बेटा y एक्सिस में कुछ कंटिन्यूएशन की साइन देके हमें करने की जरूरत है कि यहाँ पर स्केल ऐसा है कि भाई बिना कंटिन्यूएशन की साइन देके भी बात हो सकती है? નિત્યા શું કહે છે બેટા તું નિત્યા? હા સર આપણે કઈ કન્ટિન્યુએશન ની સાઇન કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પાઈ નું સ્કેલ લઈશું તો થઈ જશે. phi નું સ્કેલ લેશું તો ગ્રાફ મસ્ત રીતે થઈ જશે. વાત તારી સાચી છે. તો બેટા everybody take the scale of phi. Come on, he is absolutely right. We don't need any continuation signs because the value which is the least, that is phi, and the max is 50. So in our graph it can be easily accommodated. In our graph it would be easily accommodated. So यहाँ पर ये 0 है, phi 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50. But will you plot all the points and can give me the trend line? फिर मैं करूंगा और फिर मेरे और तुम्हारे जवाब में देखो अंतर क्या है. देखो वो तुम्हें पता चलेगा अंतर, the difference. Let's start. I am just writing down the scale. You do it. I am just writing down the scale. कि भाई स्केल जो है x axis पर 1 centimeter is 1 year we have taken. On y axis we have taken 1 centimeter is 5,000 tourists, because the information given it is in thousands. Okay, so 1 के सामने पहला वाला है phi, 1 के सामने पहला वाला है phi, सेकंड के सामने है 7, सेकंड के सामने है 7, थर्ड के सामने है 10, देन फोर्थ के सामने है 14, फोर्थ के सामने है 14, फिर फिफ्थ के सामने है 30, फिफ्थ के सामने है 30,
देन सिक्स्थ के सामने है 41, सिक्स्थ के सामने है 41, सेवेंथ के सामने है 50, सेवेंथ के सामने है अपना 50. I am joining all the points. And हम लिख देंगे this is my original series. Beta, give me a thumbs up. How many of you have got this original series done? Original series done. Give me thumbs up. And all the points, what do you say? Going up? क्या लग रहा है? सारे पॉइंट्स आपको बेटा किधर जाते दिख रहे हैं? सर आसमान की ऊंचाइयों तक जा रहे हैं. चेक कर लो. This is how your graph is, the graph would look like. बेटा ग्राफ ऐसा बन रहा है, बोलो नहीं यार, मैं वेट कर रहा हूं कब से. जनता स्क्रीन शेयर का मैसेज करके बोलती रहती है, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया. साला देखो ग्राफ ऐसा बन रहा है. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू डू ट्रेंड लाइन? कितने लोगों ने ट्रेंड लाइन बना दी? ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन. अच्छा, कैसी बनी है तुम्हारी ट्रेंड लाइन? ऊपर की ओर जा रही है क्या? ऊपर की ओर जा रही है. देखो मैं भी बना रहा हूं, और तुम्हारी और मेरी ट्रेंड लाइन में देखो कितना फर्क दिखेगा. तुम्हारी और मेरी ट्रेंड लाइन में देखो कितना फर्क दिखेगा. आई एम ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर. सो ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो ट्रेंड ऊपर की ओर जा रहा है, उससे हम ये ट्रेंड लाइन कह देंगे. बराबर है? बराबर है? So, but the first method of finding out the trend line, can I say that's the most easiest of the method? Do you all agree with me? Okay, is the easiest method, and that is why, beta, I am so happy to announce. Okay, this is the most easiest of the method. That's why in board exams they don't ask. They don't ask this method in the board exam. बेटा गुस्सो करीने पेंसिल स्केल ना पछाड़सो, હું સમજી શકું છું. સર જે આવડે એ તો પૂછતા નહીં યાર મને. So this method has to be understood by us, क्योंकि आगे के कुछ सम्स में ऐसा बोर्ड में 2-3 बार हुआ है कि उन्होंने दोनों मेथड पूछी है कि पहले आप लीस्ट स्क्वायर से भी सॉल्व करो और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करके बताओ. तो हमको खाली लीस्ट स्क्वायर मेथड से अगर हम सिर्फ करते जाएंगे, और अगर एग्जाम में आ गया कि भाई ग्राफ भी बनाना है, तो यू शुड नो हाउ टू मेक अ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइंस. श्योर? श्योर? बेटा यू आर सच अ स्कॉलर बैच कि मेरे को बस 1-2 सम ही दिखाने होते हैं, फिर बाकी के तो सम तुम ऐसे होमवर्क धड़ाधड़ कर लोगे. राइट? Mark your homework, which you need to do it before the next session. Mark your homework, which you need to do before your next session. The sum, that is, just a second.
you need to do illustration. Illustration 1, 2. Need to do illustration 1, 2. Then 4.1 में sum number 3, sum number 4. 4.3 में sum number 4.1 में sum number 3, sum number 4. 4.1 में 4 sums. Now 4.1 का जो थर्ड सम है ना, उसमें कंटिन्यूएशन वाला साइन लेके स्केल करना. देखो 800 900 वाले हैं, ऐसा नहीं कि ग्राफ पे मैं स्केल लेके 100 का स्केल लूंगा, ऐसा मत करना. कंटिन्यूएशन वाला साइन लेके कुछ ऐसे स्केल लेना कि जिससे ग्राफ तुम्हारा अच्छा दिखे, जस्ट लाइक यू, अच्छा दिखे ग्राफ. बराबर है? Okay, so in the next lecture we'll start method of least square. In the next lecture we'll start method of least square.